Hi friends, in today's session we'll start with the most important part of this chapter, that is photoelectric effect. Einstein awarded a Nobel Prize for this photoelectric effect. So what actually means by photoelectric effect? So basically it is first observed by Frigel Hertz, but he could not give the successful discussion or outcome of this photoelectric effect, and due to this later on this developed by Einstein and give the justifications of this photoelectric effect and awarded a Nobel Prize. Now what actually happened in this photoelectric effect? So here in case there is a light fall on a surface of this metal most probably used as a first group element, that is called as potassium, rubidium and cesium, which can easily release an electron. So when a light fall on a surface of metal, surface ejaculate one electron. बेसिकली क्या होगा, लाइट जब भी सरफेस के ऊपर टच होगी, सरफेस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. द इलेक्ट्रॉन रिलीज आर डिटेक्ट बाय दिस डिटेक्टर या फिर मेजर बाय एमीटर एंड गोज टू दिस एमीटर. एमीटर में डिफ्लेक्शंस मिलेगा एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सर्किट. सो दिस इज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दो पहलू यहाँ पे डिस्कशन करने हैं, कितनी इंटेंसिटी और कितनी लाइट चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to ejaculate one electron from the metal surfaces, that is called threshold frequency or threshold energy. And दूसरा हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है कितनी इंटेंसिटी के बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी होगी उसका क्या करेंगे, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो एक लास्ट में हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे और इक्वेशन के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी अवेलेबल है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट इज the phenomenon of this ejection of electron by the certain metal. One marker question, which metal are used into this photoelectric effect? कौन से है? पोटेशियम, रुबिडियम and cesium. When light of the suitable frequency incident on them, जब suitable light उसके ऊपर incident हो रही है तब the electrons ejected are called photoelectrons. So यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है that is entitled as photoelectrons. This phenomenon was first observed by this Frigel Hertz. Hertz ने सबसे पहले ये phenomenon चेक किया था. The important characteristics of this photoelectric effect are as follows. कौन से है? First, the electrons are ejected from the metal surfaces as soon as the beam of light strike on the surfaces. So basically what happened when light are strike on a surface of metal, इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. मीन्स जैसे ही लाइट मेटल सरफेस के ऊपर जाएगा इमीडिएटली वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. नेक्स्ट, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ दिस लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेसेस. बेसिकली क्या है, देयर इज नो टाइम गैप. ऐसा नहीं है कि लाइट सरफेस के ऊपर फॉल हुआ उसके 5 मिनट या 10 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. मीन्स यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, इमीडिएटली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. लाइट यहाँ से इमिट हुआ, जैसे ही सरफेस को टच किया वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सेकेंड, the number of electron ejected is proportional to this intensity or the brightness of light. Most important part, the number of electron ejected is proportional to, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, it's depend on the intensity or the brightness of the light. Third, for each metal there is a minimum frequency that is called known as threshold frequency. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, minimum energy required to remove one electron from the metal surfaces are known as threshold frequency. So each and every metal having a different threshold frequency. Means जरूरी नहीं है जितनी एनर्जी आप पोटेशियम के लिए दोगे सेम एनर्जी पे सीजियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. So once again a third point, the each metal there is a minimum frequency. That frequency is known as threshold frequency, below which the photoelectric effect is not observed. अब ये सिंपल एग्जांपल इस हिसाब से मैं कोट करूंगा
कि अगर पोटेशियम के सरफेस के ऊपर से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आर्बिट्रली मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि 200 किलो जूल पर मोल चाहिए मुझे, मीन्स 2000 किलो जूल या फिर 200 किलो जूल जैसे ही एनर्जी में इंसिडेंट कर रहा हूं, तभी जाके पोटेशियम के सरफेस के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब मान लीजिए मैं 150 किलो जूल की इंटेंसिटी से लाइट इंपार्ट कर रहा हूं पोटेशियम के ऊपर से, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम कितना है? 200। अब मैं 150 किलो लेके मैं इंपार्ट करे जा रहा हूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑब्जर्व, मीन्स लोवेस्ट मिनिमम बैर मिनिमम 200 तो देना ही पड़ेगा। जब तक आप 200 या 210 जितनी एनर्जी नहीं लोगे तब तक मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सिंपल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब मान लीजिए कि हर बार जरूरी नहीं है मेटल की जितनी एनर्जी है सेम एनर्जी इंसिडेंट लाइट की हो, मीन्स 200 किलो चाहिए हमें पोटेशियम के लिए, बट जो मेरी इंसिडेंट लाइट है वो 300 है, तो क्या होगा? सो 200 तो पोटेशियम खुद ले लेगा एंड रिमेनिंग जो 100 हुई, जो एक्सेस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। एक्सेस एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। सो जरूरी नहीं है हर बार इंसिडेंट लाइट एज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स जरूरी है सेम एनर्जी की इंसिडेंट लाइट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उससे कम नहीं चलेगा, बट अगर जो ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन पार्ट। अब एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लेनेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो डिस्कशन करते हैं। मीन्स ये जो 5 या 4 पॉइंट डिस्कशन किए, इसका एलोबरेटिव वर्जन यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। A satisfactory explanation to this photoelectric effect was first time given by this Albert Einstein. Basically क्या हुआ, जब भी फ्रिगल हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था तब वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए, उसका जस्टिफिकेशन था, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। तो वो सबसे पहले किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कैसे दिया? यूजिंग द प्लैंक्स कांस्टेंट थियरी। जो प्लैंक की कांस्टेंट थियरी थी और क्वांटम थियरी थी, उससे उन्होंने दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, when a photon of the sufficient energy strike on a metal surfaces, it transfers its energy to this electron of an atom of an metal instantaneously, and the electron is ejected without any time gap. Means when a photon of sufficient light, sufficient का मतलब क्या हो रहा है? मिनिमम एनर्जी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी देनी ही पड़ेगी। सो इंसिडेंट लाइट जब भी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, जो अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो जैसे ही मेटल सरफेस को वो टच कर रहा है, इमीडिएटली मेटल सरफेस एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल देगा। Why? Because जो इंसिडेंट लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इमीडिएटली विदाउट एनी टाइम गैप और टाइम लैग वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। A part of energy is used to eject the electron from the metal surfaces, that is to overcome the attractive force of nucleus, that is nothing but the work function, that is denoted by h nu 0. Once again, a part of energy is used to eject the electron from the metal surface. Basically क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम डिस्कशन, that is थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं। A part of energy required to remove one electron from metal surfaces are known as work function, and the other part is given to ejected electrons is known as kinetic energy. मीन्स रिमेनिंग जो एक्सेस लाइट थी और एक्सेस एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा h nu is equal to h nu 0 plus half mv square. सो बेसिकली h nu क्या है? इंसिडेंट लाइट।
इंसिडेंट लाइट में से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो गई एच न्यू जीरो। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो क्या हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल अबाउट इंसिडेंट लाइट जितनी थी उतनी माइनस जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज एच न्यू जीरो। तो वो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर थियरी। मान लीजिए एक लेमन एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ डे, मॉर्निंग में आपके पापा ने आपको 500 रुपये दे दिए, उसमें से 200 रुपये का आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया और 100 रुपये का पेट्रोल फिल करवाया। रिमेनिंग इज योर लेफ्ट अमाउंट। सो टोटल लेफ्ट अमाउंट कितना हुआ 200। तो आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे 200 रुपये, आप क्या बोलोगे 500 इज गिवन माइनस 200 रिचार्ज माइनस 100 रुपीज ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 200 रुपीज। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है दोस्तों। एच न्यू क्या है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू एच न्यू जीरो। एच न्यू जीरो क्या है, जो बेयर मिनिमम खर्चा था आपका, एक था रिचार्ज करवाना, दूसरा था पेट्रोल फिलिंग। लाइकवाइज यहाँ पे बेयर मिनिमम क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, वो हो गया आपका एच न्यू जीरो। अब बचा क्या, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या था काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जो अगर आपको हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है तो ये सामने चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अब उसका जस्टिफिकेशन ऊपर दिया है वो पढ़ लेते हैं। सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, आपको क्लियरली बताया जो स्ट्राइकिंग एनर्जी है उसकी एनर्जी क्या है एच न्यू, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एच न्यू जीरो, दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। याद रखिएगा वर्क फंक्शन के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज में अवेलेबल है। नेक्स्ट सेशन में हम यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। इधर एच न्यू दिया होगा, एच न्यू जीरो ढूंढना होगा। इधर एच न्यू एंड एच न्यू जीरो दोनों दिए होंगे तो आपको हाफ एम वी स्क्वायर ढूंढना होगा। कुछ ना कुछ ये तीन में से दो वैल्यू दी होगी, थर्ड यू टू फाइंड आउट। Then the difference in energy, that is h nu minus h nu zero, is transferred as a kinetic energy. H nu minus h nu zero is known as transfer in a kinetic energy. Following law conservation of energy principle, the kinetic energy ejected is electron is, this is your equation. So last terminology discussion कर रहे हैं, where me क्या है, that is mass of an electron. V क्या है, तो velocity of an ejected electron. A more intense beam of light contains the larger number of photons, so the number of electron ejected is also a larger. So this is all about your photoelectric effect. Photoelectric effect में main चीज most important क्या ध्यान रखना है, आपको figure draw करना पड़ेगा. Figure shows everything. Once again, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट को कैसे डिनोट किया हुआ है एच न्यू से। इंसिडेंट लाइट सीधा कहाँ पे अटैक करेगी, मेटल सरफेस के ऊपर। मेटल सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेसिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ईच एंड एवरी मेटल हैविंग डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो उसको कैसे डिनोट किया है एच न्यू जीरो। इमीडिएटली कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इमीडिएटली मेटल सरफेस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन एनोड और डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा, एमीटर में मेजर होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सर्किट। सो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद रखना पड़ेगा, where h nu is equal to incident light, h nu zero is equal to threshold frequency, and excess amount of energy is known as kinetic energy. So kinetic energy is nothing but h nu minus h nu zero. So this is all about your photoelectric effect. बहुत बार पूछा हुआ स्कूल का क्वेश्चन 2 मार्क के अंदर। Figure shows everything, 1 mark for your figure, 1 mark for your discussion, and on the basis of this formula you have few numerical available in end exercise. So next session we'll discuss about the numerical based on photoelectric effect. So this is all about your today's session.
Thank you.